Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। जो हमने ऑनलाइन क्लास का सिलसिला शुरू किया था जिसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डिस्कस कर रहे थे, हाइपोथैलेमस को हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हम हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी बोलते हैं या इसको हम मास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं, द कंडक्टर ऑफ द एंडोक्राइन सिम्फोनी। अगर हम ऐसे बोलें कि जो बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यही काम करवाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ एक्ट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। या हम ऐसे बता दें, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस और बॉडी एंडोक्राइन बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके साथ कनेक्ट करता है। तो अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एनाटॉमिकल एस्पेक्ट देखेंगे, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देखेंगे, वो यही है कि ये एक कैविटी में होता है, जो स्फेनाइड बोन की कैविटी होती है जिसको हम सेला टर्सिका बोलते हैं। सेला टर्सिका स्फेनाइड बोन की कैविटी होती है और उसी में मौजूद होता है एक छोटा सा जो छोटी से साइज का जो पी शेप्ड पी साइज्ड एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑलमोस्ट इसका जो वेट होता है 0.5 ग्राम्स का होता है, और इसका जो डायमीटर है 1 to 1.5 सेंटीमीटर। दिस इज अ स्टैटिस्टिकल डाटा, इट कैन वेरी। आई ऑलवेज focus on these things, that statistical data, it can vary, number of books give you different data regarding this. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, अगर हम एनाटॉमिकली देखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो हम अभी आपको जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन करेंगे। जो अभी मैंने बोला, एनाटॉमिकली देयर आर 3 lobes of this pituitary gland. This is the posterior lobe of pituitary gland, and this is the anterior lobe of pituitary gland, and this is the intermediate lobe. This is the anterior lobe, this is the posterior lobe, and this is the intermediate lobe. This anterior lobe is also called as pars anterior. Intermediate lobe is also called as pars intermedia, and posterior lobe it's also called as pars nervosa or pars posterior. And the another name of pars anterior is pars distalis. Anterior lobe, it's also called pars anterior, it's also called pars distalis. Intermediate lobe is also called pars intermedia, and posterior lobe, this is also called as pars nervosa. Now, if we'll functionally divide this pituitary gland into 2 lobes, then intermediate lobe plus anterior lobe, they comprise of adenohypophysis. They are together called as adenohypophysis, and this posterior lobe, this is called as neurohypophysis. Intermediate lobe and anterior lobe, they are called as adenohypophysis. Posterior lobe, it's also called as neurohypophysis. So let me recall this point again. If anatomically pituitary gland is discussed, it consists of 3 lobes: anterior lobe, intermediate lobe, posterior lobe. Anterior lobe, pars anterior or pars distalis. Intermediate lobe or pars anterior. Posterior lobe, it's also called as pars nervosa, or it's also called as neurohypophysis. And then if we will divide this pituitary gland into functional areas, there are 2 functional areas. This intermediate lobe and anterior lobe, they constitute of adenohypophysis, and this posterior lobe consists of neurohypophysis. Now, if we will discuss this whole pituitary gland, it's connected to hypothalamus by a stalk called as infundibulum. This whole pituitary gland is present in a cavity called sella turcica. Sella turcica is the cavity present in sphenoid bone in which the pituitary gland is present. And then there is a protective layer outside this pituitary gland, and that protective layer is called as diaphragma celli, which is nothing but a fold of dura mater. And then there is median eminence. This median eminence, where it's present, I'll tell you like this: posterior lobe and anterior lobe. This anterior lobe goes to hypothalamus, gets connected to optic chiasma in hypothalamus, and this posterior lobe gets connected to mammillary body. Now, this posterior lobe and anterior lobe, since they are connected to hypothalamus, so through these 2 routes, the pituitary gland is controlled.
and between these two roots there is this curvature, this called as median eminence. So what we got out of the structure of this pituitary gland, it consists of anatomically of 3 lobes: pars anterior, pars intermedia, and pars posterior. And then there is a stalk, this stalk which connects it to the hypothalamus. This is called as infundibulum. One more thing is that this anterior lobe, it extends up to some area of this hypothalamus, that is called as pars tuberalis, which is not too more eminent. Now, if we'll discuss this posterior lobe in detail, what happens to this posterior lobe, there are 2 long neurons, axon tracts in posterior lobe. These long axon tracts, they arise from 2 nuclei in hypothalamus. One is paraventricular nucleus, the other is supraoptic nucleus. मैं फिर से बता रहा हूँ, जो पोस्टीरियर लोब है, अगर हम इनको डिस्कस करेंगे, पोस्टीरियर लोब में 2 एक्सॉन्स के ट्रैक्स मौजूद होते हैं, और वो एक्सॉन्स के ट्रैक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होते हैं, जो मौजूद होते हैं हाइपोथैलेमस में. एक न्यूक्लियस होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, दूसरा होता है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस. पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, उनके एक्सॉन ट्रैक्स जाते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, और वहां पे वो स्पेशलाइज्ड बॉडीज में एंड होते हैं, जिनको हम हेरिंग्स बॉडीज बोलते हैं. और इन हेरिंग्स बॉडीज में जो हार्मोन्स पोस्टीरियर लोब के, वो टेम्पोररी स्टोर होते हैं. अगर हम सेल्स की बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, क्रोमोफोब सेल्स एंड chromophil cells. Right now we do not know the function of chromophobe cells exactly, but the chromophil cells, these are the staining cells which get the dyes when they are stained. They are of 2 types: acidophilus, which are stained by acidic dyes, and basophilus, which are stained by basic dyes. Now if we will discuss these chromophilus are upon classification we get acidophilus and basophilus. Now acidophilus are further classified into lactotrope and somatotrope. Basophilus are classified into gonadotrope, corticotrope and thyrotrope. मैं फिर से बता रहा हूँ, जो हम पिट्यूटरी ग्लैंड देखते हैं, वहाँ पे 2 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, क्रोमोफोब सेल्स और क्रोमोफिल सेल. क्रोमोफोब सेल्स का काम तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन क्रोमोफिल सेल जो है उनका काम पता है. और इनको क्रोमोफिल जो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कलर डाई जो है उनसे स्टेन होती है. इनके 2 का अगर हम इसके क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, तो इसमें एक एसिडोफिल आता है, दूसरा आता है बेसोफिल. एसिडोफिल जो है एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं, बेसोफिल बेसिक डाई से स्टेन होते हैं. एसिडोफिल जो होते हैं, इसमें फिर 2 किस्म के सेल्स फिर से आते हैं. एक तो लैक्टोट्रोप होता है, दूसरा होता है सोमेटोट्रोप. और जो बेसोफिल्स होते हैं उसमें होते हैं गोनेडोट्रोप, कॉर्टिकोट्रोप, थायरोट्रोप. तो अगर हम फाइनली देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में 5 किस्म की सेल्स होती हैं: लैक्टोट्रोप सेल्स, सोमेटोट्रोप सेल्स, गोनेडोट्रोप सेल्स, कॉर्टिकोट्रोप सेल्स एंड थायरोट्रोप सेल्स. जो सेल्स है, ये सेल्स विद इन द पिट्यूटरी ग्लैंड डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रेट करती है. अब कौन सा हार्मोन इससे आएगा, तो हम एंटीरियर लोब की बात करेंगे. एंटीरियर लोब से 6 हार्मोन्स बाहर आते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन डिटेल. तो अभी हम देख रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सेल्स हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. अब सीधे आते हैं हार्मोन्स पर. एंटीरियर लोब से 6 हार्मोन्स आते हैं, मेजर 6 हार्मोन. पहला है ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इसका काम क्या है? ग्रोथ कराना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ग्रोथ कैसे कराएगा? या तो ये पहले हम देखेंगे सेल मल्टीप्लिकेशन कराएगा. सेल डिवीजन जो है वो ज़्यादा होंगी, उससे सेल्स जो है उनका नंबर बढ़ जाएगा, सेल डिफरेंशिएशन होगी. और दूसरा क्या है? ये प्रोटीन जो है उसकी डिपोजिशन कराएगा. प्रोटीन डिपोजिशन कैसे होगी? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में नहीं आएगा, प्रोटीन जो है वो डिग्रेड नहीं होगा, उसकी लाइसिस नहीं होगी. ग्रोथ हार्मोन उसको प्रोटीन डिपार्ट्स में स्टोर करने की कोशिश करेगा. और जो बॉडी में प्रोटीन स्टोर होता है, डेफिनेटली अ पर्सन ग्रोज, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस इज नथिंग बट प्रोटीन. दूसरा ये क्या काम कराता है? कार्बोहाइड्रेट जो है उसको भी मेटाबॉलिज्म में कम ही लाता है, उससे एटीपी प्रोडक्शन जो है वो कम कराता है. अगर हम देखेंगे मेन सोर्स ऑफ एटीपी हमारी बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट ही है. तो ग्रोथ हार्मोन क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने की कोशिश करता है, ताकि जो ये कार्बोहाइड्रेट है हम दूसरे कामों में जो ग्रोथ के रिलेटेड है उसको हम उसमें यूटिलाइज करेंगे. ये ग्रोथ हार्मोन. तो इसको आप सबस्टिट्यूट करने, अगर हम प्रोटीन भी स्टोर करने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर करने जा रहे हैं, तो उसकी जगह तो हमने कहीं से एनर्जी लानी है. तो वहाँ से हम क्या करते हैं? हम फैट की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हम फैट को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं. और फैट को डिग्रेड करने के लिए ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़रूरी है. ग्रोथ हार्मोन या दूसरा हार्मोन जो है लाइपोट्रोपिन भी जिसको हम बोलते हैं, और एडिपोकाइनेटिक हार्मोन बोलते हैं, वो मदद करता है ग्रोथ हार्मोन को फैट्स को डिग्रेड करने में, हाइड्रोलाइज कराने में, ताकि ये इसी से फिर जो है एनर्जी प्रोड्यूस करें. और प्रोटीन और जो
ये कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर हो जाए, उससे जो बॉडी टिश्यूज़ की वो ग्रोथ उसकी ग्रोथ हो एंड डेवलपमेंट हो। तो प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म में लाना, और सॉरी फैट्स को मेटाबॉलिज्म में लाना और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करना ताकि उससे ग्रोथ हो जाए। और क्या करेगा, जो एमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में है, ग्रोथ हार्मोन एमाइनो एसिड्स का जो मूवमेंट है इनटू द सेल्स वो इंक्रीज कराता है। ज़्यादा से ज़्यादा एमाइनो एसिड्स सेल्स में चले जाते हैं। और इसके साथ क्या होता है, ये ग्रोथ हार्मोन डीएनए से ज़्यादा आरएनए बनाने की कोशिश करता है, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ज़्यादा होती है। जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से फिर जो है प्रोटीन्स बनते हैं उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ये डीएनए से ज़्यादा आरएनए बनाने की कोशिश करेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर मैसेंजर आरएनए जो बनेगा उससे ज़्यादा प्रोटीन्स बनेंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो हम इस तरह बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन एक तो ट्रांसक्रिप्शन की रेट इंक्रीज करता है, दूसरा उसी के साथ ट्रांसलेशन की रेट इंक्रीज करता है, और फाइनली जब हम ट्रांसलेशन का एंड प्रोडक्ट देखते हैं वो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है। तो ये काम भी ग्रोथ हार्मोन ही कराता है। अब देखते हैं सिचुएशन कि ग्रोथ हार्मोन कब निकलता है। जब बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो उस वक्त ग्रोथ हार्मोन निकलता है, या एज में हम देखते हैं इन्फेंट्स जो होते हैं या उसके बाद चिल्ड्रन होता है, जो ग्रोइंग पीरियड जो उनका होता है अप टू दी एडल्टहुड 25 ईयर्स ऑफ द एज, वहाँ से ग्रोथ हार्मोन वहाँ तक निकलता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा लेट जीरियाट्रिक स्टेज है वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा, डेफिनेटली ग्रोथ हार्मोन इज देयर, लेकिन उसकी जो पोटेंट एक्शन और फंक्शन है वो इन्फेंट्स में ज़्यादा है। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इट डिक्रीज एंड एडल्टहुड पे इसका जो है पीक जो है वो आ जाता है। साथ ही ये ग्रोथ हार्मोन में भी बोल रहा था कहाँ से निकलेगा, स्टारवेशन के दौरान ये निकलता है। इट इज़ आल्सो स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस होता है उसकी वजह से भी ये निकलेगा। और जो अगर ज़्यादा अगर ब्लड प्लाज्मा जो है वहाँ ग्रोथ हार्मोन की जो है कंसनट्रेशन कम पड़ जाए उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलेगा। और जो स्लीप है, स्लीप का जो हम बोलते हैं थर्ड फोर्थ स्टेज और डीप स्लीप है, वहाँ पे जो है ग्रोथ हार्मोन निकलता है। इसीलिए जो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेबीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है कि हम फिर जो है पीडियाट्रिशियंस के पास जाएं। अगर बेबी ग्रो नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी को फॉल्ट है, स्लीप पैटर्न में भी कुछ चेंजेस हो सकती है। पॉइंट ये है जो ग्रोथ हार्मोन है ये स्लीप में ज़्यादा निकलता है। जब बच्चा सोता है उस टाइम ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलता है, और जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकला बच्चा अच्छे से ग्रो करेगा। अब बच्चा जो है वो अच्छे से सोता नहीं है, ग्रोथ हार्मोन अच्छे से नहीं निकलेगा तो बच्चे की जो है ग्रोथ वो भी अच्छे से नहीं होगी। तो वी हैव टू लुक आफ्टर द बेबीज वेदर दे आर गेटिंग एनफ एडुकेट स्लीप, बिकॉज स्लीप जो है उसमें ग्रोथ हार्मोन अच्छे से निकलता है, और उसके बाद अच्छे से निकलने के बाद इसकी जो एक्टिविटी है वो भी मैक्सिमम होती है। सेल मल्टीप्लिकेशन जो है, सोमेटिक सेल डिवीजन है, वो भी अच्छे से होती है। तो ड्यूरिंग स्लीप वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। द बेबी जो बच्चा ज़्यादा सोता है उसमें ग्रोथ हार्मोन भी ज़्यादा निकलता है, और उसका जो ग्रोथ साइकिल है वो भी जल्दी अटेन होता है। अब मसला है कि ग्रोथ हार्मोन किस तरीके से काम करता है, वो तो डिटेल में इंशाल्लाह जो है आगे वाले लेक्चर्स में वो हम देखेंगे मैकेनिज्म। तो ये एक स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस के थ्रू ऑपरेट करता है जिनको हम सोमेटोमीडियंस बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन ऑपरेट्स थ्रू स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस कॉल्ड सोमेटोमीडियन, जिनको हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स भी बोलते हैं। दिस वाज द फर्स्ट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन अगर कम पड़ जाए उससे भी डिसऑर्डर, अगर ज़्यादा पड़ जाए उससे भी डिसऑर्डर्स हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका इट्स अ ट्रॉफिक हार्मोन। ट्रॉफिक हार्मोन वो हार्मोन होता है जो एक ग्लैंड से निकलता है दूसरे ग्लैंड पे एक्ट करता है, वहाँ से सिक्रीशन निकलता है। सिंपली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है और चला जाता है थायराइड ग्लैंड पे, वहाँ से T3 T4 को जो है उसकी सिंथेसिस कराता है। दिस वाज द सेकंड। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रोथ हार्मोन जो है ये सोमेटोट्रोप सेल से बनता है, और इसी तरह जो थायराइड हार्मोन है या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो थायरोट्रोप सेल से बनता है। तीसरा हार्मोन जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का क्या काम है, वो एड्रेनल कॉर्टेक्स की जो है ग्रोथ वो रेगुलेट करता है। एड्रेनल जूना रेटिकुलरिस में होता है, जूना फेजिकुलेटा, जूना ग्लोमेरुलस, वहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स से उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करना कि जो ACTH है, जब ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा वही जो है सुप्रारेनल ग्लैंड या एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल कॉर्टेक्स से
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज कराएगा। तो इट्स वंस अगेन एट्रोफिक हार्मोन। अब जो चौथा, तो ये जो एड्रेनोकॉर्टिको हार्मोन है, एट्रोफिक हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स से बाहर आता है। अब एक इंपॉर्टेंट हार्मोन जो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को हम दो हेडिंग्स में पढ़ते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हम पहले अगर देखेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सिंपली व्हाट इट डज, it stimulates the Graafian follicle, ovarian follicle. It brings about the maturation of ovarian follicle, जो ओव्यूलेशन के लिए ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ओव्यूलेशन कराता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलकर ओवरीज में चला जाता है। वहाँ से क्या करता है, जो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है जिसमें ओवा मौजूद होता है मैच्योर, उसको मैच्योर कराने की कोशिश करता है, मैच्योर कराने के साथ साथ उसको रिलीज कराने की कोशिश करता है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इतना ही काम नहीं है, यह ओवरीज को अपने हार्मोन रिलीज कराने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो है उसको रिलीज कराने में मदद करता है। उसके साथ ही दूसरा हार्मोन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मैंने अभी बोला। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या का काम है, रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलेशन ऑफ द ओव्यूलेशन, रेगुलेशन ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स so far as the ovaries are concerned. Last time in hypothalamus I told you about that LH surge. LH जो है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ जो है मिलकर ओव्यूलेशन को कंट्रोल कराता है। डिटेल जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। उसके साथ ही जो है अगर हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इन टर्म्स ऑफ मेल्स जो है वो डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हम मेल्स में देखते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये लेडीज सेल जो होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स मेल्स टेस्टिस में जाकर उनको स्टिमुलेट कराती है, ताकि वहाँ से जो स्टेरॉइड प्रीप्रो हार्मोन होता है उसको मैच्योर करे, ताकि वहाँ से टेस्टोस्टेरोन बन जाए। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल कैरेक्टर्स, या हम बोलते हैं फुली male is male if there is present testosterone. If there is no testosterone, and maximum number of male characters are lost. So यहाँ पे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिस्कस कर रहे थे या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को डिस्कस कर रहे थे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दे कोलैबोरेटिवली कंट्रोल ओव्यूलेशन, control the female character, control the functioning of ovaries, control the pregnancy later on by giving those successive what I can say steps. First ovulation, then there is maturation of corpus luteum, which in turn will secrete progesterone, and finally if the progesterone persists and the fertilization occurs, there is pregnancy. Now leaving this aside, we'll discuss it. One more hormone that is secreted, this gonadotropic hormone within the pituitary gland is secreted by gonadotrope cells. Now another hormone that is secreted in pituitary anterior lobe of pituitary gland is prolactin. Now prolactin hormone, it is present almost in every vertebrate, but we have to discuss this in terms of humans. Prolactin hormone is the main hormone which is responsible for milk production. It stimulates mammary glands for milk production. If its level is increased in blood during pregnancy, it also increases the size of the breasts in female, size of the mammary glands. It prepares the mammary glands for milk production. So main hormone for milk production is prolactin. Now this prolactin, when it is secreted, when there is release of prolactin releasing hormone from hypothalamus, that stimulates anterior lobe to secrete prolactin, and then prolactin will control the functioning of mammary glands to produce more and more milk, and it also increases the size of the breasts in case of pregnant ladies, because its concentration in the plasma is in increased pattern. Now besides this thing, एक और काम करता है जो हम बोलते हैं नेचुरली जो है कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुएशन। तो हम जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमनोरेहिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्रोलैक्टिन की वजह से होता है। तो इट्स ए नेचुरल कंट्रासेप्टिव। इफ देयर इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, एक तो मिल्क प्रोडक्शन कराएगा, साइज ऑफ द ब्रेस्ट जो है इंक्रीज होगा, और साथ ही में ये क्या करता है, ये बॉडी जो फीमेल बॉडी है वहाँ पे
टेम्पोरेरी अरेस्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो लैक्टेशनल एमनोरेगिया, जब तक बेबी सक करेगा मदर को तो तब तक प्रोलैक्टिन जो है वो रिलीज होता जाएगा, और प्रोलैक्टिन जो है वो थ्रू दी इनहिबिशन ऑफ नंबर ऑफ हार्मोन्स विद इन द बॉडी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को सीज करने की कोशिश करेगा, जिसको हम नेचुरल कंट्रासेप्टिव भी बोलेंगे। These were the now we are left with intermediate lobe. Intermediate lobe secretes only one hormone, and that is melanocyte stimulating hormone. Now clearly its full function is not known yet, लेकिन ये क्या करता है, इट्स प्रोड्यूस एज अ सिस्टर हार्मोन ऑफ एसीटी, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। उसका जो सिस्टर हार्मोन है वो यही है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इट इज़ बिलीव्ड दैट जो है पिगमेंटेशन ऑफ द हेयर्स जो है, बॉडी हेयर्स या हेयर सिंपल जो है स्कैल्प हेयर्स है, इसकी पिगमेंटेशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। एंड जो फीमेल्स में हाइपर पिगमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है वो इसी से होती है, एडिसनल डिजीज़ है वो इसी के रिलेटेड होती है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जहाँ से इंटरमीडिएट लोब से निकलता है, इट्स प्रोड्यूस एज अ सिस्टर हार्मोन ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। साथ ही लाइपोप्रोटीन भी बनता है, इसके साथ एंडोर्फिन भी बनता है। These are the four hormones that are produced as sister hormones: adrenocorticotropic hormone, endorphin, lipotropin, and melanocyte stimulating hormone. Inshallah Mustan, we will be discussing the detailed function of the hormones of posterior lobe of pituitary gland, which are actually stored in posterior lobe and secreted by hypothalamus in the next lecture. Till then.